रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं आपको। और फिर आप वक्फ बोर्ड में इलेक्शंस नहीं होंगे, नॉमिनेशन होगा, तो भारत में ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो किसको रखेंगे और किसकी प्रॉपर्टी बचेगी बताइए। आप डेटा उठाकर देख लीजिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा दिया ही नहीं वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का। No, it is not a question. The finality of the act, of the decision of the act, has not been decided. It's only an interim order that has been given by the Honorable Supreme Court. We are of the opinion that let us hope that they quickly decide the whole issue on the act itself. How is the opposition? This is a court interim order. In fact, our arguments are still very strong, and I'm sure when Supreme Court finally hears the whole validity or the unconstitutionality of this act, then all these issues will be brought in front of the Supreme Court. But the real purpose of BJP of bringing this act is to ensure that the Waqf mechanism gets weakened. Their whole idea is that tomorrow no one should give their property as Waqf. And I am telling you and reminding you and the country that on the day when this bill was debated in the Lok Sabha, it was BJP with the permission of Speaker, they had brought in a provision wherein which said that no Waqf property can be created in scheduled tribes, knowing jolly well that there's a Muslim MP from Lakshadweep, you're taking a right to freedom. They brought in an amendment to the bill that a trust will not be a Waqf. Why was that brought? That was brought to reward a person who had built his palatial palace on a orphanage. But sir, designed officer making challenge in revenue records. Designed officer, maybe who's designated officer making challenge in revenue records, permitting the collector to examine rights would be against separation of powers. Until finally, the rights of properties will not be affected. That is well taken. That was done because again you're not giving credit to the opposition MPs of that committee. We had said that this violates the principles of natural justice. The collector cannot be a judge and jury in his own case. But my another apprehension is that the surveys of the Waqf properties will be done by the collector, and the collector will be appointed by the executive. Before this act was made, it was the survey commissioner who was in hierarchy senior to the collector and independent from the collector. Was too much powers given to collector also stated by the Supreme Court, and a property will not cease to be Waqf when collector is inquiring. So powers have been seized, and that stay has also been given. So what do you expect? Collector should not be inquiring into it? No, I accept what the Honorable Supreme Court has done today, but I am telling you the surveys of Waqf. Tomorrow, if you are registering a Waqf property, and anyone can object to that, a new survey can only be done by the collector in this new act, and the collector we know is controlled by the state government. How independent he will be in protecting a Waqf property? Sir, you said that this is respect the decision that has come up, but Union Minister, Law Minister, has said that this is a very good sign of democracy, but this legislation that is brought, this law that is brought, is only to protect the law. See, that is their propaganda. I want to know that, see, out of so many states in our country, only 7 states have done a survey. Now, if a new survey is done, that will be done by collector. Who's collector now? You are talking about a stay which Supreme Court has given regarding a government property that a collector cannot decide, but a survey will be done by collector. Secondly, if tomorrow a property of a Waqf has been encroached by someone and no legal case has been filed,
by this act, the Limitation Act will apply. That man will become the owner of that property, despite having all the documents. That is what we are saying. It is, we hope and we expect and we plead that Honorable Supreme Court would listen to the finality of and take a final decision on the act itself. मास्टर जी, मेरा एक आखिरी सवाल वक्त को लेकर ये कि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा, सरकार की तरफ से या फैसला होगा। सरकार आप कहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिकली करेगी कि नहीं, ये भी सवाल आता है। तो सवाल ये भी उठता है, नॉमिनेटेड पोस्ट होंगे, आप ये कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप अब तक जो इलेक्शन वाली जो पॉलिसी कर रहे थे उससे तो फायदा नहीं हुआ है मुसलमानों को। कैसे बोलते फायदा नहीं हुआ? आप कितना फायदा हुआ? नहीं, हम वही तो हम पूछ रहे, जब तक आप सुनिए, जब तक आप वक्फ बोर्ड्स को समरी एविक्शन पावर्स नहीं देंगे, मेरे पास समरी एविक्शन पावर्स ही वक्फ बोर्ड के पास नहीं है ना। आप समरी एविक्शन पावर्स नहीं देते हैं, आप पैसा नहीं देते वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, तो ये पूरा जो एक्ट बनाया गया है वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं। अब आप देखिए, वक्फ और औलाद के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दी। यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे देना चाह रहा हूं, तो आपने लगा दिया कि नहीं, उसमें किसी बच्ची का शेयर मार नहीं खाना। अरे भाई, मैं मेरी प्रॉपर्टी में अल्लाह को देना चाह रहा हूं। अब आप उसमें बोल रहे नहीं, अब वो कौन होगा? अच्छा, ओरल गिफ्ट नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता है, यहां पे आप बोल रहे नहीं, ओरल नहीं हो सकता, एक्ट में बोल रहे हैं आप। सर, अभी एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री जहाँ की सियासत करते हैं बिहार में, हिमाचल में, प्रधानमंत्री पूर्णिया में है, वहाँ के 4 जो मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पे 3-4 जिलों में हिमाचल में, और समूह आप ही वही भी राजनीति करते हैं बिहार में। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे। अरे, कोचा दामन में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बना पा रहे आप? कोचा दामन रेलवे स्टेशन बनाइए ना। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे आप? तड़प रहे हैं वहां के बच्चे बच्चियां, तो खत्म होने के दहाने पे आ गया वो। तीसरा, जो जलालगढ़ से किशनगंज की लाइन का क्यों नहीं डाला गया उसको? पूर्णिया का इतना बड़ा रनवे है, अब आ जाके आप कर रहे हैं। अब नहीं मालूम, इससे पहले भी हुआ था, फिर बंद हो गया। फिर ये आपने फ्लड आता है वहां पर, फ्लड को रोकने का काम क्या कर रहे हैं बताइए आप? जमीन कट जाती है, गांव कट जाता है, उस पानी को रोकने का, फ्लड का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? गाया में आपने इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई कर दिया, एरिया जोन बना दिया। किशनगंज को क्यों नहीं करते भाई आप? इंडस्ट्रियल जोन बनाइए ना उसको। सीमांचल को आप बैकवर्ड रख रहे हैं और बैकवर्ड रखना चाहते, अब प्रधानमंत्री जाके वहां पे बोलेंगे डेमोग्राफी चेंज हो रही। ये बीजेपी से हम पूछना चाह रहे, ये एसआईआर जो हुआ है, 65 लाख में कितने बाहर के लोग थे बताओ? एक तो मर गए, निकाल दिए नाम आपने बोला, एक तो आप बोले कि डबल एंट्री, एक बोले शिफ्टिंग। अब प्रधानमंत्री बोलेंगे भाइयों बहनों देखो हमारे इन बॉर्डर एरिया में डेमोग्राफी चेंज हो रही, कहां है बताओ उसमें? हाँ, वो तो देख, एम्स क्यों नहीं बनाते भाई सीमांचल में? एम्स बनाइए ना सीमांचल में। पटना जाना पड़ता हमको, सीमांचल में बना दीजिए एम्स। एक गाया की तरह सीमांचल में आप एक इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करिए, कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन बनवा दीजिए। ये सब चीजें हैं। सर, डेमोग्राफी की बात की जाती है, तो एमएससी वहाँ पे है, तो बीएससी का भी बयान आया था, पप्पू यादव भी वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, तो इस पर क्या कहना सर आपका? नहीं, पार्टिसिपेट कर रहे हमसे मतलब नहीं। हम ये बोल रहे कि सीमांचल भारत का सबसे अंडर डेवलप एरिया है। सीमांचल, अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे तो क्या वो उन नौजवानों को बोलेंगे सीमांचल के, जो आज पंजाब की खेतों में काम कर रहे हैं, मुंबई की होटलों में काम कर रहे हैं, हैदराबाद में आकर यहां पर काम करते हैं, उनका पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी के पास क्या एक्शन प्लान है बताइए हमको? इतने साल से आप सत्ता में हैं,
जलालगढ़ से किशनगंज को रेलवे ट्रैक क्यों नहीं डाला गया? सीमांचल में वाई हैव यू नॉट ओपनड एन एम्स इन सीमांचल? वाई हैव यू नॉट डिक्लेयर्ड any one district of Seemanchal as the industrial area zone to bring industries over there? In this recent SIR, did anyone find anyone who was not an Indian over there? But a propaganda was created about Seemanchal. सर आपने क्रिकेट देखने से मना किया था कि क्रिकेट नहीं देखना, इंडिया जीत गई है। आप ही के ANI ने एक ट्वीट के जरिए फोटोग्राफ डाला था कि पूरे स्टेडियम में हजारों की तादाद में सीट खाली पड़ी हुई है। आप ही ने डाला था। अब मेरे से आपके सवाल का जवाब वही है। देखिए, भारत जीतना चाहिए हर जगह पर, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ हो, मगर जीत का मयार ये नहीं हो सकता कि जो लोग आकर हमारी बेटियों को बेवा और हमारे बच्चों को यतीम करें, आप उनके साथ खेल खेलेंगे। ये जीत नहीं हो सकती है। हाँ, 2 साल के बाद गए। 1 साल में कितने दिन होते भाई? और कितने वहां पर कितने महिलाओं का रेप हुआ? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है। उस मुख्यमंत्री को आप क्यों हटाए? क्योंकि उसका एक ऑडियो लीक हो गया कि उसने कहा मैंने जंग शुरू कर दी। अभी भी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है उस प्रेसिडेंट रूल की? बताइए। बीजेपी की जिम्मेदारी है। सूर्य कुमार ने जिस तरीके का जेस्चर दिखाया और जो बातें करी, उससे पाकिस्तान ने अपनी शिकायत। देखिए, नहीं मैडम, वो सब बातें मत करिए। मेरी शिकायत इतनी एक ही है कि जब हम पानी बंद कर दिए, जब हम हमारे एयर स्पेस में उनका जहाज नहीं आ सकता, हमारे पानी में उनकी कश्ती नहीं आ सकती, हमारा ट्रेड नहीं हो रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है, हम खेल क्यों रहे उनसे? हम क्यों खेल रहे हैं? वो बता दो हमको आप। बिहार चुनाव को लेकर कई रीजनल पार्टी सब ये कह रही है कि नेशनल पार्टी जो भी है उनको जो है उनसे ज्यादा रीजनल पार्टीज को लोग तवज्जो दें, उन्हें ज्यादा वोट करें, तभी राज्य की तरक्की होगी। अभी बिहार में जो चुनाव एक हम समझ मैडम, सीमांचल का जो इलाका है, राजद के 10-11 साल, नीतीश कुमार के तो चल रहा है सिलसिला, बीजेपी भी, इन्होंने सीमांचल के लिए, बिहार के लिए क्या क्या बताइए आप? अगर इन्होंने कुछ किया होता तो लाखों की तादाद में सीमांचल और बिहार की नौजवान अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर में चिराग जलाने के लिए, अपनी माँ बाप की उनका इलाज करवाने के लिए, वो अपनी जवानी में अपने माँ बाप को छोड़कर देश के कोने कोने में क्यों जाते? ये प्रूफ है कि उन्होंने सिर्फ बिहार की जनता का और खासतौर से सीमांचल की जनता का वोट लिया और उनको बर्बाद कर दिया उन्होंने, सब पार्टियों ने। थैंक यू।